اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان ہوا کہ اللہ زمین سے تمہارے لیے نباتات کو پیدا کرتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے۔ فرمایا جیسے اللہ زمین سے وہ نباتات کو اگاتا ہے ایسے ہی اللہ نے تمہیں بھی زمین سے پیدا کیا ہے، اور ایسے ہی اللہ دوبارہ زمین کے حوالے تمہیں کرے گا اور پھر اللہ تمہیں زمین سے نکالے گا۔ یہ جوڑ ہے ان آیات کریمہ کے درمیان۔ منہا خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں اس زمین سے۔ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کا جو خمیر بنایا گیا تھا، جو وہ مٹی سے، گارے سے بنایا گیا تھا، پھر اس کے اندر اللہ نے روح پھونکی۔ اللہ جو پیدا کرتا ہے تمام انسانوں کو، اس کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اسی زمین سے اناج اگتا ہے، اس اناج کو ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمارا خون بنتا ہے، اسی خون سے پھر انسانی نطفہ بنتا ہے، پھر اس انسانی نطفے سے اللہ انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ زمین ہی سے پیدا کیے گئے ہیں تمام انسان۔ فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر تمہیں لٹایا جائے گا اسی زمین کے حوالے۔ فرمایا نہیں، زمین کے حوالے تمہیں کرنا ہے۔ ایک شیطان تھا، اس نے بھی قبر کے عذاب سے، برزخ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، یعنی مجھ پر موت نہ آئے، سیدھی قیامت آ جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تو جتنا بھی بڑا چال باز ہو، لیکن خالق تمہارا میں ہی ہوں، بنانے والا میں ہی ہوں، تمہیں موت آئے گی۔ چنانچہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس سور کے اندر شیطان بھی مر جائے گا، 40 سال تک برزخ کا عذاب چکھتا رہے گا۔ یہ سور پھونکنے سے پہلے اس پر موت نہیں آئے گی، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس کے اوپر بھی برزخ کا عذاب ہوگا، چکھے گا۔ یہ برزخ کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے، اس سے تمام انبیاء نے پناہ مانگی ہے۔ اور تو اور شیطان ساری باتوں کو سمجھتا تھا، اس نے بھی کہا کہ اگر برزخ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا تو میرا تو بہت ہی زیادہ خسارہ ہو جائے گا، لہذا اس نے کہا اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا الی یوم وقت المعلوم، تمہیں وقت معلوم پہلے سور تک مہلت ہے، اس وقت تیرے اوپر موت آ جائے گی۔ تو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، تمہیں لٹایا جائے گا، اس قبر کے حوالے کیا جائے گا۔ اور بعض جگہ کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں مفسرین کہ جس زمین سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، کیا مطلب؟ جس جگہ کا اناج کھا کر انسان کا وہ قطرہ بنتا ہے، جس سے انسان نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جس زمین سے وہ بنتا ہے، وہ اس کی قبر والی زمین ہوتی ہے۔ جس زمین کی غذا سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی زمین کے حوالے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ مفسرین کی ایک اپنی رائے ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور تمہیں نکالا جائے گا اسی زمین سے تارةً اخرى، دوسری مرتبہ، یعنی مرو گے، قبر میں چلے جاؤ گے، دوسری مرتبہ ہم اسی قبر سے تمہیں اٹھائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مٹی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب کیا رکھا؟ ابو التراب، یعنی مٹی والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ کب دیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے اور علی کے درمیان کسی بات کے اوپر ناراضگی ہو گئی، انہوں نے اپنی چادر اٹھائی، سیدھے چلے گئے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر گئے، جا کر اوپر چادر اوڑھی اور نیچے ہاتھ رکھا، سو گئے مسجد کے فرش کے اوپر، مٹی کے اوپر۔ رسول اللہ آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ وہ تو اس طرح ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی نہیں، کسی آدمی کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ کدھر ہے، تو فرمایا وہ مسجد نبوی کے اندر اس طرح زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ خود گئے اور فرمایا تم یا ابا التراب، اٹھ اے مٹی والے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا۔ اور حضرت علی خود کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں پیدا کیا گیا ہے من تراب، مٹی سے،
आला तुराबिन, हम इसी मिट्टी के ऊपर चलते हैं, फी तुराबिन, फिर इस मिट्टी के अंदर जाएंगे, और मिनत तुराब, इसी मिट्टी से हमें दोबारा उठाया जाएगा। ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे। और इंसान को होनी चाहिए मोहब्बत इस मिट्टी से। क्यों? पैदा भी इसी से किए गए हैं, इसी के ऊपर चलते हैं, फिर इसी के अंदर जाएंगे। तो मिट्टी की क्या सिफत है? बैठना नीचे। तो इंसान को भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जिस चीज से पैदा किया गया है उसकी सिफत आजिजी है, लिहाजा इंसान को अपने अंदर आजिजी लानी चाहिए। और यही चीज अल्लाह को पसंद भी है, महबूब भी है अल्लाह को। वलक़द अरैनाहु, अब फिरौन के दरबार के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे। वहां पर पहुंचने के बाद फरमाते हैं वलक़द, कसम बाखुदा, अरैनाहु आयातिना, हमने दिखाई उसे निशानियां, कुल्लहा, सारी की सारी, फकज़्ज़ब व अबा, उसने जुठलाई और मुंह फेर दिया। हमारी निशानियों को उसने माना नहीं, मुंह फेर दिया उसने हमारे निशानियों से। क़ाला, फिरौन ने कहा, अजितना, कि ए मूसा, क्या तू आया है हमारे पास, लितुख़रिजना, ताकि तू हमें निकाल दे, मिन अर्ज़िना, हमारी जमीन से, हमारे मुल्क से हमें निकालने के लिए तू आया है। तू चाहता है कि जो बादशाह फिरौन के पास है वो तू खुद खींच ले मुझसे और मेरे लोगों को यहाँ से निकाल दे तू। बिसिहरिका या मूसा, ए मूसा, अपने जादू के जरिए, यानी ये जो जादू है तेरे पास, तो आसा को फेंकता है, सांप बन जाता है, हाथ डालता है, वो चमकने लग जाता है। इस जादू के जरिए तू लोगों को फिसलाना चाहता है और मुझे मेरे मुल्क से निकालना चाहता है। फलनअतियन्नका, कसम खा रहा है यहाँ पर फिरौन। फिरौन कहते हैं मुझे कसम है कि मैं लाऊंगा बिसिहरिन मिस्लिही, तेरे जैसे जादूगर। अब कितना बड़ा कमबख्त है कि अल्लाह के मोजज़े को जादू के साथ ताबीर कर रहा है। मोजज़े को मोजज़ा समझ नहीं रहा, कह रहा है कि तू जादूगर है। फजअल बैनना व बैनका मौइदन, ए मूसा, तू बना अपने दरमियान और हमारे दरमियान मौइदन, एक वादे की जगह। मेरा तुझे चैलेंज है कि मैं तेरी तरह के जादूगर लाऊंगा, अब तू एक मैदान खुद मुकर्रर कर। मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है, यानी मैदान मुकर्रर कर, लोगों को बुला, लोग आए, लोग सारा कुछ सामने अपनी आंखों से देख लें। ला नुखलिफु नहनु वला अंता, ना हम उस वादे से पीछे हटे वादे की मुखालिफत करें, और ए मूसा ना तू उस वादे की मुखालिफत कर। एक वक्त को तय कर, हम भी आए और तुम भी आओ, ये ना हो कि हम में से कोई ना आए। फरमाया मकानन सुवा, एक बराबर जमीन, हमवार जमीन, खुला मैदान तू तय कर, चैलेंज है मेरा तेरे लिए। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, तुम्हारे वादे की जगह वो तुम्हारे ईद का दिन है। नौरोज जिसे कहा जाता है, नौरोज, यानी साल खत्म हुआ, सर्दियां खत्म हुई, जैसे ही बहार का मौसम शुरू होता है तो यहूदी अपनी ईद मनाते हैं। ये यहूदियों का ईद का दिन होता है, साल मुकम्मल होने के बाद यहूदियों की ईद है। अब वो ही यहूदियों वाली ईद आज कुछ और लोगों ने भी ली हुई है, जैसे ईरान, तेहरान, इस तरह कई ममालिक वाले वो यहूदियों वाली ईद को मना रहे हैं। ईरान के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर ये दिन मनाया जाता है। हालांकि ये दिन ईरान वालों का नहीं है, ये दिन यहूदियों का है, लेकिन ये यहूदियों के क्या हैं, बेटे हैं, हकीकी बेटे नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत इनकी इतनी ही है यहूदियों से जितनी कि अपने बेटे से की जाती है। लिहाजा ये वो अपने पुराने अबाओ अजदाद की यहूदियों की उस रस्म को लेकर चले आ रहे हैं। अभी भी ईरान के अंदर ये दिन मनाया जाता है, यौमुज़्ज़ीना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और जमा किया जाए लोगों को ज़ुहा, चाश्त के वक़्त, सुबह के वक़्त, जिस वक़्त रोशनी हो जाए, ये ना हो कि अंधेरे के अंदर मामला हो, किसी को कुछ पता न चले, लोग सारी की सारी चीज़ों को सूरज की रोशनी में देखें ताकि उनके ऊपर हक वाज़े हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ लोगों को। फतवल्ला फिरऔन, ये बात हो गई, अब दरबार के अंदर फिरौन चला गया, बात तय हो गई, इबादत तय हो गया। फजमा अकीदहु, तो उसने क्या किया, तदबीरें की, अपने तमाम के तमाम जो जादूगर थे उन्हें बुला लिया,
9वें सिपारे के अंदर अल्लाह इस चीज की मजीद वजाहत करते हैं। फिरौन ने सारे जादूगरों को बुलाया। बुलाने के बाद फिरौन ने क्या कहा उनसे कि आज जो कुछ भी हो तुमने ऐसा काम करना है कि तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारी नस्लें आए वो इस दिन को याद रखें कि हमारे बाप दादा इतने बड़े जादूगर थे कि उन्होंने मूसा जैसे आदमी को हराया, तुमने ये काम करना है। अब जादूगर जो थे उन्होंने फिरौन से कहा कि ए फिरौन, तू हमें क्या इनाम देगा? हमने अगर मूसा को हरा दिया तो हमारा इनाम क्या होगा? तो फिरौन ने कहा कि इनाम से क्या करते हो, मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा, तुम मेरे बहुत नजदीक होगे, दरबार के अंदर जो तुम्हारी हैसियत होगी वो वजीरों की नहीं होगी। तो अब जादूगरों ने कहा कि जब बादशाह खुद हमें मिल रहा है तो और किसी इनाम की क्या जरूरत, लिहाजा वो लग गए जोर के अंदर कि हमने इसको हराना ही हराना है। क़ाल लहुम मूसा, अब मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए वादे की जगह पर, फिरौन भी आ गया। अब जादू दिखाना है, तो जादू दिखाने से पहले फिरौन ने अपने दरबारियों से, अपने जादूगरों से कलाम किया। उसके बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जादूगरों को मुखातिब कर रहे हैं। क़ाल लहुम मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जादूगरों से कहा, वैलकुम, तबाही है तुम्हारे लिए, हलाकत है, बर्बादी है, क्यों ना हो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हुए हो। रसूल को तो अल्लाह भेजता है, रसूल अल्लाह का नायब होता है, लिहाजा तुम अल्लाह के मुकाबले में आए हुए हो, तुम्हारे लिए बर्बादी है, हलाकत है। ला तफ्तरू अलल्लाहि कज़िबन, अल्लाह के ऊपर झूठ मत बांधो। ये अल्लाह के ऊपर झूठ है कि आप अल्लाह के मोजज़े को जादू कहो, इससे बड़ा झूठ अल्लाह के ऊपर क्या है? और फरमाया फयुस्हितकुम बिअज़ाब, झूठ बांधे। और अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने की कई सूरतें हैं। पहली सूरत जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि कोई अल्लाह की हलाल करदा चीज को इंसान हराम करार दे। ये क्या है? अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है, बोल रहे हैं। इसी तरीके से एक चीज अल्लाह ने हराम करार दी है, उस हराम करदा चीज को अगर इंसान हलाल करार दे तो ये भी क्या है? अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। वही का सिलसिला खत्म हो चुका है। जो चीजें अल्लाह ने हलाल करनी थी वो अल्लाह ने हलाल कर दी, जो हराम करनी थी वो हराम हो गई। अब आप अपनी तरफ से कोई चीज हलाल और हराम नहीं कर सकते। पहले भी अर्ज कर चुका हूं कई मर्तबा कि रसूल को, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुद एक ही मर्तबा आपने अपने लिए क्या किया? शहद को हराम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन वही आई, लिमा तुहर्रिम, अल्लाह के रसूल क्यों हराम कर रहे हो अपने ऊपर उस चीज को जो अल्लाह ने हलाल की है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफारे के तौर पर 3 रोजे रखे थे। लफ्ज़